بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ مشہور و معروف اسٹرالوجر، مذہبی اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر، آپ سب لوگوں کے فیوریٹ محمد اسامہ علی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب سے آج میں نے سیاسی پریڈکشنز لینی ہے۔ محمد اسامہ علی صاحب کہہ رہے تھے کہ مئی ہاٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور مئی واقعی ہاٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اسامہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف بات جائے گی، اور مذاکرات کی بھی بات کی تھی۔ وہ بات جو مذاکرات کی چل نکلی آج اسامہ صاحب سے، میں نے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے، اور اسٹیٹ کونسل نے کہا ہے کہ بات کوئی ایگریمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ عدالت بھی پریشان ہے کہ کیس عدالت میں اور بات ایگریمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر بات کچھ اس طرح ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کیس ڈیالہ جیل منتقلی کا چل رہا ہے، اس میں وکیل تو بشرا بی بی صاحبہ کے پیش نہیں ہوئے تھے، تو اسٹیٹ کونسل کہہ رہی ہے تھوڑا ہمیں وقت دیا جائے، کوئی بات ایگریمنٹ کی طرف چل رہی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب کی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، یہ یکم مئی کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ بات بہت واضح تھی کہ اس کے بعد وہ بھی مان جائیں گے جو نہیں مانتے، تو شاید یہ باتیں صداقت رکھتی ہوں، کیونکہ مئی کی آمد ہے اور مئی شروع، اور بس اس کے بعد عمران خان بھی چال باز ہو جائیں گے، مطلب تھوڑے سے فلیکسیبل ہو جائیں گے اور چیزوں کو ڈفرینٹلی لے کے چلیں گے، اور شاید اس میں کوئی نہ کوئی اس طریقے کی جو راہ نکل آئے اور یہ بات حقیقت ہو جائے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کو نہ بھیجا جانا اڈیالہ میں قیدی کا مطلب، آپ خود دیکھیں، اب آپ کوئی ایسے کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ بھئی آپ گھر میں قید ہو جائیں بھئی، اس کا چکر کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ کہیں اڈیالہ میں خان تو بیگم بھی ادھر پہنچ گئی تو رات کو لوگ تو ہیلو ہائی کرا ہی دیا کریں گے جو ادھر کے اندر کے سارا سٹاف ہوگا، ہاں تو جی عمران خان پھر نہ نکلا، پھر تو ڈیل پہ نہ آیا، تو الٹا یہ اس کو پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیں اتنا بڑا پروفائل کو، آپ کا کیا خیال ہے جیلر یا اندر کا سٹاف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ قیدیوں والا سلوک رکھتا ہوگا؟ اس کے فالوور پوری ہر مشینری میں ہے، ہر محکمے میں ہے، ان کے چاہنے والے قیدی بھی ایون ہوں گے، تو وہاں تو ایک اپنی دنیا ہوگی ان کی۔ وہاں بیگم بھی پہنچ گئی تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر کون نکلتا ہے باہر؟ خان کو تو خرچہ چاہیے کہ خرچہ بچے، اور ایک دفعہ بس، اور ان سب کو وہ فارمولا لگا کے بیٹھے ہیں، وہ فارمولا ایسا لگا لیا ہے جیسے اس گیموں میں ہوتا تھا کہ آپ وہ بس بٹن چھوڑ ہی نہیں رہے، تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے اور پھر کوئی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ملک ایسے نہیں چل سکتا، ڈیڈ لاک ہے، اکنامک کنڈیشن خراب ہے، پریشر ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے حکومت پہ بھی اور حکومت بنانے والوں پہ بھی، تو وہ پریشر اب مئی میں ریلیز ہوگا۔ عمران خان بھی فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں اور یہ لوگ بھی ریلائز کر جائیں گے کہ اب اس کو منا کے ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ عمران خان کے بغیر آگے معاملات بڑھانے مشکل ہے۔ اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب عدلیہ کے ذریعے باہر آئیں گے یا یہ کوئی مذاکرات کے ذریعے باہر آنے والے ہیں؟ ابھی عدلیہ کے ذریعے اندر ہیں کہ کیسے اندر ہیں؟ سر وہ کیسز ہی ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یہ تو نہیں ویٹ کر رہے کہ وہ، کیونکہ حماد اظہر صاحب کہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے نا تب تک اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہونی۔ اور جج 2-3 کیسوں سے نکالیں گے، وہ اگلے کیسوں میں ڈال دیں گے، عدالت حکم دے گی، آپریشنل جیلر مانے گا نہیں، جیسے وہ شاہ محمود صاحب کے کیس میں ہوا تھا، ضمانت ہو گئی تھی اور آگے سے اس نے مانی نہیں، تو یہ حرکتیں چلتی رہیں گی جب تک تھوڑا سا کوئی فلیکسیبل درمیانی راستے نہ نکالے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ججز کو دھمکیوں والے کے علی امین صاحب کو آپ لوگ نا غور سے نہیں سنتے ہیں، جی 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 علی امین گنڈا پور کو غور سے سنا کریں، وہ جو ڈائلاگ مار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نمائندگی ہے اس طبقے کی، ان لوگوں کی جو کہ اس ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی پھر جیل سے نکال کے لے آئیں گے کے پی کے۔
हाँ तो वही ये कोई इतनी वो बात नहीं है, हाँ ये कोई इतनी नामुमकिन बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। सर, वो आप इस्लामाबाद में होते हैं, ज़रा ध्यान रखें, इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें कर रहे हैं वो। हाँ हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो प्लानिटरी इंडिकेशन है वो पहले ही आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हम डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, लोग इख्तियार अपने हाथों में ले लेंगे, सुबह अपनी अपनी बात करेंगे। वो वीडियो क्लिप निकाला करें ना, लोगों को दिखाया करें जब ऐसी कोई बात होती है। फिर वो बिल्कुल कहते हैं कि जी प्रेडिक्शंस किधर होती हैं किधर नहीं। थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट बनाने के लिए वो क्लिप्स निकाल निकाल के दिखाएं, पिछले सारे दिखा रहे हैं एक दफा सीरीज कोकब न्याजी की, ताकि इनको पता चले कि 6 माह से आप जो मेहनत कर रहे हैं इनको अच्छा क्वालिटी वर्क वहां पहुंचाने की, तो वो इम्प्रेसिव हो, ताकि इनको समझ आए। बहरहाल एनी हाउ, जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं वो कोई हवाई फायर नहीं है, वो एक हकीकत हो सकती है। चलें ये समझ लें आप, ऐसा हो सकता है कि वो इस्लामाबाद यूं आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इमरान खान को जेल से लेके चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे कहानी है यार, बड़ा भाई इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा सिस्टम को डराया हुआ, कोई चक्कर नहीं है। सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, पावर डिसेंट्रलाइज है, फूट हर तरफ है, हर पार्टी में है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और और एक और बात भी समझ लें, ये जी। जरूर हाथ तो इनके ही शामिल हैं, बड़े जो गुरुओं के, जरदारी साहब जैसे वो, वरना ये 2 4 5 मुलाजिम मिलके कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने आप को ये समझते हैं ना कि ये बड़े फने खां हैं, इनके तो अगला मुस्तकबिल जो एक वो क्या कहूँ मैं उनको, साबका जो एक इनका कट्टा फिरा है अभी, उसको निकाल के दिखाए ना बाहर अवाम में, पता चल जाएगा तो छुपाया क्यों हुआ है। तो ये असल बात ये है कि उसका हशर देख के अपनी खौफ आ रहे हैं इनको, और इसलिए वो चाहते हैं कि कोई दरमियानी सूरत हाल निकल आए। और ऊपर से जो हालात बन रहे हैं, अब हलवाई को तो हलवाई का ही काम करना पड़ेगा ना, वो बेशक जितनी देर मर्जी कहता रहे कि आउट ऑफ सीजन है। आउट ऑफ सीजन आपको पता है, गर्मियों में हलवाइयों का उतना काम नहीं, सर्दी में ज्यादा चलता है, खोए मारने होते हैं या कुछ भी। तो वो गर्मियों में कोई साइड जॉब भी कर लेते हैं, कोई गंदम के व्यापारी बन गए या कोई और बिजनेस कर लिए, लेकिन आखिरकार तो फिर वही खोया ही निकालना है बैठ के। तो जो मर्जी अपनी डोमेन से निकल जाए, जब टाइम आया सीजन आया तो अपनी डोमेन में जाना पड़ना। तो फिर वो जिसके व्यापार थे जिसके काम थे वो उसी को ही जाएंगे। वो तो ये आप लोग इतना कान लगा के रखें, अली अमीन गंडापुर जो कह रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। चलें, है तो वैसे बात बहुत खतरनाक, और प्रिडिक्शन भी आपकी है। खैर, अल्लाह खैर करे। मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मौलाना साहब, और अगर पीटीआई इकट्ठे हो जाए तो 3 4 माह से हुकूमत ज़्यादा नहीं चलेगी। आपको एक तो दोनों इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत वाकई 3 4 माह की रहेगी। मौलाना अब अपना कैरियर बचाने के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कोशिश करें, लेकिन पीटीआई को क्या जरूरत है किसी की भी। पीटीआई के साथ तो हैं ना 3 4 जमातें। नहीं, नाम लिख दो, फिर 10 और नाम लिख दो, हैं भी 10 जमातें और हैं साथ, नई रजिस्टर करा के ना उनके नाम भी साथ लिख दें कि ये जी मैंने आप रजिस्टर कराई, ये जमात भी साथ है। और भाई जिसकी अपनी 180 सीट में से मार के सारी भी उतारी गई तो 90 बच गई हैं, वो खुद जमात अकेली बहुत है। उसके सिर्फ लोग या उसके जो नुमाइंदे जो चुने गए हैं, वो थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली या कोई गैरत का मुजाहरा कर लें, तो कोई कहानी नहीं है। और ये कहानी अब बदल के ही रहनी है, ये दिन है जितने मर्जी गुजारने। और फवाद चौधरी साहब इतने साइंसदान ना बने ना, इनको तो अपनी जिंदगी की इतनी अकल नहीं आई कि मैं इस्तेकाम में जाके कॉन्फ्रेंस में ना बैठूं, उधर मुंह छुपाते रहे, आज समझ ही नहीं आ रही जाऊं किधर। तो ऐसे खा खा के गोल वो हो जाते हैं, गोल गप्पे। अब हमें बताएंगे कि मौलाना यूं करें और फलां करें, कैरियर खत्म, इसका भी कैरियर खत्म है। ये अब बेगम के साथ जो है ना एंजॉय करें बस, बच्चों के साथ। फवाद चौधरी साहब इतनी माशाल्लाह साइंसदान है, तो आपको अकल थी, अंदर भी गए, खले भी खाए, नाम भी खराब कर लिया। मतलब ऐसा तो साइंसदान को पैदा ही नहीं हुआ ना। मतलब बाकियों ने कॉन्फ्रेंस की जान छुड़ाई, इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, गए भी, इस्तेकाम में जाके बैठे भी, जेल भी चले गए। आओ। वो तो पीटीआई में
पी टी आई में सर वापस आना चाह रहे हैं, पी टी आई में वापस आ जाएंगे? ऐसे फजूल बातें मिन्नतें तरले करेंगे, क्या फायदा, इतने आप साइंसदान। अच्छा उसामा साहब, पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर चैलेंज हो गए इलेक्शन कमीशन में, आपको लग रहा है फिर कलअदम हो जाएंगे? ये सिस्टम ही नहीं चलाना चाहते ये चाहते ही नहीं है कुछ। ये जिंदगी का तारीखी ड्रामा जो है ना पाकिस्तान देखेगा। अभी तो नवाज शरीफ साहब का याद नहीं है, मैंने कहा इमरान खान के साथ आप लोग फजलुर रहमान कह रहे हैं, इमरान खान के साथ नवाज शरीफ ना आगे खड़ा हो जाए। आपकी प्रेडिक्शन ये वाली मुझे दुरुस्त होती नजर आ रही है। राना सनावला उसको उनको दरखास्त कर रहे हैं दोबारा पार्टी सदर बना के मज़ामती सियासत पे लेके आना। हाँ हाँ, तो ये अभी देखे तो सही अभी तो देखे तो सही आपको वो सारे मंजरनामे नजर आएंगे जो कहा था। लेकिन बहरहाल असल बात ये है भाई कि ये जितने भी बादाम खा लें ना खाएं, कहानी इनके हाथ में नहीं है ना आनी है। और उसके लिए एक खुदाई मदद, अल्लाह ताला का एक करम, एक बेसिक बुनियादी सेंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जो ह्यूमन लव जो इस्लाम की कोर है, पीस, सलामती, जी जिस दिमाग में नहीं जिसको समझ, वो इस सिस्टम को कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये जितनी मर्जी ड्रामेबाजियां कर लें, कलमे पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग, फितना, फसाद, सारी कहानियां हलवाई ने आखिर हलवाई बनाना जाके, वो अपनी उसी प्रैक्टिस पे रहे। और वो वक्त ने देग के अंदर ऐसे मुंह पकड़ के ना, देग के अंदर कुदरत ने डाल देना है हलवाई को कि बेटा ये तेरा काम है, तू यही कर। क्योंकि हलवाई बढ़ाई का काम नहीं कर सकता, जितना मर्जी साइंसदान बन जाए। हाँ, ये कैफियत तारी होती हैं, ये ऐसे वक्त बदलते हैं। लेकिन ये शुक्र करें यकम मई आ गया, जुपिटर ठीक हो गया, सीधा हो गया। अच्छा अकल अकल की बातें शुरू होंगी, हर तरफ ही होंगी। इमरान खान भी थोड़ा से सियाने सियाने नजर आएंगे, रवैये में लचक नजर आएगी। और दूसरी साइड पे भी ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ी सी दिमागी सुकून या एक इरिटेशन जो थी उसमें कमी वाकई हो सकती। उसामा साहब, सियासी थोड़ा सुकून तो आप बता रहे हैं, एक टॉपिक आपके दिल के करीब है, आप हमेशा गरीब आवाम की बात करते हैं। वो किसान एहतजाज पे थे, सोने पे सुहागा कि अब ताजिर भी एहतजाज पे निकल आए हैं। आपको लग रहा है कि गरीबों का कभी कोई सोचेगा, गरीबों को इंसाफ कब मिलेगा? उनके बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं, करें? गरीबों का क्यों किसी ने सोचना, गरीब अपना खुद कब सोचता है गरीब बड़ा भी कोई बड़ा आपका समसलात का पाबंद और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक सारे काम कर रहा है। देखिए एक बात समझ लें, जो भी हुक्म खुदा की से बाहर है वो गरीब है या अमीर है, बर्बाद है, सिंपल जब तक जिंदगी में खुदा के हुक्मों को शामिल हाल नहीं करेंगे यही रहना है। और जो एहतजाज हैं, जो चीजें हैं, 15 मई तक एक्सट्रीम का टाइम, इसका हाई टाइम है, अच्छा पॉसिबल है। और मैंने आपको हाई टाइम दिया हुआ गवर्नमेंट के भी शेक होने का, यही हाई टाइम है। ठीक है। ये मई मई में मतलब पॉलिटिकल जो एहतजाज आप कह रहे थे वो अब इख्तिताम की तरफ हुकूमत को ले जाएगा? वैसे मई में आपको नजर आता है कि अभी टाइम है हुकूमत के पास? बस मई हाई टाइम है, इन्होंने अगर जाना जूना है तो बहुत अच्छा टाइम है बड़े अच्छा पिकनिक मनाते जाएं। अच्छा बिल्कुल ठीक है मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।